Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is equity shares, and we have also started a topic that is preference shares. Okay, so share are of two types, that is equity shares and the preference shares. Okay, so in the last class, we have started also a preference share in which we have studied the what is preference share and what are the different features of the preference share. Okay, so in today's class we are going to start what are the advantages and merits of the preference shares. Okay, so first one is help to collect large amount of funds. Next one is no fixed liability. Third is no interference. Fourth one is no charge on asset. Fifth is variety, and sixth one is trading on equity. So help to collect large amount of funds. The preference shares helps to collect a huge amount of funds because cautious investors and financial institutions prefer to invest in preference shares of a company. Preference shares attract more public due to fixed rate of return, no fixed liability. Dividend to preference shares holder is paid only when the company is earning profit. During loss period, there is no fixed liability to pay dividend as in the case of loan and borrowings. Third is no interference. The preference shares holder do not carry any voting rights. The presence of preference shares does not diffuse the control of any equity shareholders. With preference shares in capital structure also, the equity shareholder retain exclusive control over the company. Fourth one is no charge on assets. Preference shares are not issued against any security. The asset of the company remain free to be offered as security for loan and borrowings. Next one is variety. A company can issue different types of preference shares according to the need of the investors and the interest of the company. Sixth one is trading on equity. The rate of dividend on the preference shares is fixed. Hence, in years of prosperity and more profit, equity shareholders enjoy high rate of earning with the presence of preference shares in the capital structure. Okay, so the first one is helps to collect large amount of fund. So the preference shares help to collect a huge amount of fund. Okay, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को कलेक्ट करते हैं बिकॉज दे कॉशियस इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी. ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा अवेयर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो बहुत अलर्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या प्रेफर करती हैं, वो अपने मनी को फंड को इन्वेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं. एंड प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. ओके, इसमें क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स में कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो फिक्स्ड है, इसलिए ये जनरल पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टू परचेज दी प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नो फिक्स्ड लायबिलिटी. डिविडेंड to preference shares holder is paid only when the company is earning profit. Okay, in the case of preference shares, in the case of the प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, डिविडेंड उनको शेयर्स होल्डर को तभी पेड होगा जब यहाँ पे फिक्स अर्निंग प्रॉफिट होगा, जब कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी. इन दैट केस ओनली द डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर. ड्यूरिंग द लॉस पीरियड देयर इज़ नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड. ओके, लॉस पीरियड में यहाँ पे कोई एक फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि उनको डिविडेंड इतना पे करना है, एज इन द केस ऑफ द लोन एंड बोरोइंग. जैसा एक लोन और बोरोइंग के केस में होता है कि उनको फिक्स लायबिलिटी होता है कि उनको पेड करना है, बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे कोई भी फिक्स लायबिलिटी नहीं है इन द केस ऑफ लॉस. नेक्स्ट वन इज़ नो इंटरफेरेंस. सो द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. सिंस वी नो दैट जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है. द प्रेजेंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ एनी इक्विटी शेयर्स. ठीक है, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का अगर प्रेजेंस होता है वो इक्विटी शेयर्स होल्डर के कंट्रोल को कभी भी डिप्लीट और वेस्ट नहीं करता है. विथ रेफरेंस
With preference shares in capital structure also, the equity shares holder retain exclusive control over the company. Okay, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर्स का भी है, स्टिल जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनका कंट्रोल कंपनी पे ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज नो चार्ज ऑन असेट्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी. ओके, अगर कंपनी को क्या करना होता है या किसी इंडिविजुअल को परचेज़ करना है शेयर्स को, तो उसके लिए उसको कोई सिक्योरिटीज़ को इशू करने की कोई नीड नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी किसी सिक्योरिटी की कोई फिक्स्ड असेट रखना हो तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसके अगेंस्ट कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर इशूड नहीं होता है. द असेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन्स एंड बोरोइंग. जो भी कंपनी के असेट्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि कोई जब भी कंपनी को कभी लोन लेना है या बोरोइंग लेना है, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, अपने असेट को यूज़ करेगी. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ असेट फॉर द इशूइंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज वैरायटी. अब कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी क्या करती है, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर. जैसी भी इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो भी नीड होती है और जो भी इंटरेस्ट है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है. और लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, कि ऑफ ₹10, 20 एंड सो ऑन. So different type of variety is also availed there. Next one is trading on equity. The rate of dividend on preference shares is fixed. Hence, in year of prosperity and more profit, equity shareholder enjoy high rate of earning with the presence of the preference shares in the capital structure. Okay, so जो rate of dividend होता है किसी भी preference shares पे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ओके, हेंस इन द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स व्हेन इकोनॉमी इज इन गुड कंडीशन, सो मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय हाई रेट ऑफ अर्निंग. ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको हाई जो अर्निंग होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी विद द प्रेजेंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेजेंस में जो अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो दे हैव एंजॉय द हाई रेट ऑफ अर्निंग. ओके, सो बेसिकली इन द फेज ऑफ द in the case of the when the economy is suffer the prosperity and the better condition. Okay, so these all are the some advantages or the merit of the preference shares in which we have studied. It helps to control the large amount of funds. There is no fixed liability in the case of preference shares, no interference. Okay, next one is no charge on assets. They don't need any kind of asset for the issuing of the preference shares. A large number of variety are also availed of the preference shares. And the last one is trading on equity. Okay, so we see that there are also some disadvantages or demerits of the preference shares. So first one is fluctuating and the low return. Second is dividend is not treated as an expense. So the preference shares holders get return only when a company is earning profit. The return on the preference shares is generally low and lesser than the rate of the interest on loan. The preference shares do not attract many investors as there is no assured return. Okay, so जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो दे गेट रिटर्न ओनली व्हेन द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट. जब कंपनी को प्रॉफिट होगा इन दैट केस ओनली दे गेट द रिटर्न. द रिटर्न ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली लो. जो रिटर्न प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है वो क्या होता है, बहुत लो अमाउंट में होता है एंड लेसर देन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन. जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं उससे भी लेसर अमाउंट में जो हमको रिटर्न मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पे, वो भी क्या होता है, लेसर अमाउंट होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स. सो द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर. जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करते एज देयर इज़ नो एश्योर्ड रिटर्न, कि उनके पास कोई ऐसी
एश्योर्ड नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उनको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग एंड दी लो रिटर्न, कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, इन दैट केस दे गेट दी हाई रेट ऑफ अर्निंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन expense. The dividend paid to preference shareholder by the company is not treated as an expense. It is not deducted from the income of the company before calculating the income tax. The company pays income tax on the income which is distributed to the preference shareholder. Okay, dividend is not treated as an expense. Dividend को हम लोग एक कंपनी क्या करती है, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करती. ओके, सो द डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी. जो कंपनी की इनकम होती है उसमें से ये डिविडेंड को डिडक्ट नहीं किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले इस डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है. सर द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन दी इनकम. ओके, और कंपनी क्या करती है, इनकम टैक्स पे करती है ऑन द इनकम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर. जो बेसिकली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. सो डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. उसको एक एक्सपेंस की तरह नहीं लिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नो वोटिंग राइट्स. सो द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर generally do not carry any voting rights. These shareholder have no say in the management. These shareholder getting voting right only on the any resolution regarding winding up of the company or the repayment or the reduction of the share capital. Next one is fixed obligation. The rate of dividend paid to the preference shareholder is fixed. During time of low profit also company has to pay a fixed rate of dividend to its preference shareholder. Next one is employee stock option. It simply means the option given to the directors, officers or the employees of the company or of its holding company or the subsidiary company or the companies, if any, which gives such director, officers or the employees the benefit of or right to purchase or to subscribe for the share of the company a future date at the predetermined price. Okay, so no voting rights. Okay, we know very well that the preference shareholder do not have any kind of voting rights. These shareholder have no say in the management, means उनका कोई बहुत important role नहीं होता है मैनेजमेंट में. These shareholder do not get any vote. These shareholder get voting right only on the any resolution. Okay, किसी रेजोल्यूशन पे ही वो क्या होता है, उनको वोटिंग राइट मिलती है रिगार्डिंग दी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी का क्लोज डाउन और वाइंडिंग अप होने लगती है तो उस रेजोल्यूशन पे उनको वोटिंग राइट्स मिलती है और रीपेमेंट और द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल. और इन द केस ऑफ जब उन्हें शेयर कैपिटल को रीपे करना होता है और उसको रिड्यूस करना होता है शेयर कैपिटल को, इन दैट केस दे गेट दी वोटिंग rights in the company. Okay, otherwise they do not have any kind of voting rights. Next one is fixed obligation. The rate of dividend paid to the preference shareholder is fixed. Okay, जो भी rate of dividend paid होता है preference shareholder पे वो क्या होता है, fixed होता है. During time of low profit also company has to pay fixed rate of dividend. अगर प्रॉफिट कंपनी में बहुत लो भी हो रहा है, इन दैट कंडीशन भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को. ओके, सो अगर इनका जो रेट होता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, बट अगर कंपनी क्या है, लॉस सफ़र कर रही है, लॉस में है, प्रॉफिट इज़ वेरी लो, इन दैट केस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, इनका जो रिटर्न है उसको पे करना ही पड़ता है, बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, फिक्स्ड है. ओके, सो एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन. व्हाट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन? इट सिंपली मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. ओके, ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है किसको, डायरेक्टर्स को कंपनी के, ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी को, और इट्स होल्डिंग कंपनी, और उनको जो इस कोई भी कंपनी को होल्ड कर रहा है
और सब्सिडियरी कंपनी मीन्स एक कंपनी के साथ जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, एफिलिएटेड कंपनी है और कंपनीज है। ओके, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इफ़ एनी which gives such director, officer or employees the benefit or to right to purchase or to subscribe the shares of the company। ठीक है, ये क्या करता है कि ऑप्शंस प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को और बेनिफिट टू द राइट टू परचेज। क्या है कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है परचेज करने का, सब्सक्राइब करने का शेयर्स की कंपनी को एज अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। की फ्यूचर डेट में वो कभी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। की उस शेयर्स का क्या होगा, एक प्राइस का डिटरमाइंड होगा कि प्राइस के कोई भी शेयर्स 10 का होगा, 20 का होगा, 100 का होगा, तो वो शेयर्स का रेट क्या होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। और जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के या अदर सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं, एफिलिएटेड कंपनीज़ हैं, एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं और कंपनी के शेयर्स पे सब्सक्राइब करते हैं फॉर दी फ्यूचर डेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस क्या होती है उस पर, प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से डिटरमाइंड कर दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज what is the difference between the equity shares and the preference shares? Okay, till now we have studied what is the equity shares, what is the meaning of the equity shares, features of equity shares, merit and demerit of the equity shares, and we have also studied what is the preference shares, meaning of the preference shares, features, merit and demerit of the preference shares. But now we are going to study the what is the basic difference between the equity shares and the preference shares, कि इन दोनों के बीच में क्या basic difference है। So we will go through the different point of difference as well as on the basis of the some difference. Okay, so let's start according to the face value. The face value of equity shares is generally low. Okay, so जो equity shares होते हैं वो बहुत जनरली लो प्राइस के होते हैं। ओके, और द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ जनरली हाई। और जो फेस वैल्यू होती है कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स की कि वो कितने का है, 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का है, तो वो जो शेयर्स होते हैं जो लो फेस वैल्यू होती है, जो बहुत लो प्राइस के होते हैं, दे ऑल आर द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है, वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट इज डिविडेंड। द डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर्स होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल द शेयर्स होल्डर। ओके, जो डिविडेंड पेड होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर को आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल दी शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल शेयर्स होल्डर हैं, इधर दे आर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो सबको पेड करने के बाद ही इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट होता है एज अ डिविडेंड। द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनको क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको प्रोवाइड हो जाता है बिफोर इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेड करने के पहले ही प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वोटिंग राइट्स। So equity shares holder get all the voting rights in the company. Okay, we know very well that the equity shares holder have the all the voting rights. उनके पास सारी voting rights होती हैं कंपनी में करने की। But in the preference shares no voting rights under the normal condition. Okay, कोई normal condition पे preference shares holder को कोई भी voting rights नहीं होती है। They get voting rights when dividend is not paid for the 2 years. अगर उनको वोट करने का ऑप्शन तभी मिलता है जब डिविडेंड क्या है, 2 और मोर देन 2 ईयर्स से वो डिविडेंड पेड नहीं हुआ है। इन दैट केस वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अट्रैक्शन। द इक्विटी शेयर्स अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो एडवेंचरस, जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर्स इसको परचेज करते हैं। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट द कॉशियस मीन्स एंड द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, मीन जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है कि जो कंटिन्यूसली प्राइस को देखता है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट किसको करते हैं, कॉशियस एज वेल एज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर
दे आर वेरी बोल्ड एंड एडवेंचरस। उन्हें कोई ये टेंशन नहीं होती कि शेयर्स की कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, वो शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो प्राइस को देखते हैं या कंपनी के शेयर्स को देखते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन दैट केस ओनली दे परचेज दी प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन इज रिस्क। द इक्विटी शेयर्स होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस। ओके, जो रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, ये रिस्क क्या होता है, रिस्क जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। मतलब कि इक्विटी शेयर्स में रिस्क की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। मींस वो सारे रिस्क सबसे पहले वही फेस करते हैं। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज़ रिलेटिवली लेस, और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो एज कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स बहुत लेस अमाउंट में होता है। नेक्स्ट वन इज रिफंड ऑफ कैपिटल। At the time of winding up of the equity shares holders are refunded only after the preference shares are paid. Okay, रिफंड ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी रिफंडिंग की बात क्या होती है। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर्स, सो जो भी अगर कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है मींस क्लोज्ड हो रही है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सारा कैपिटल रिफंड हो जाएगा, मनी रिफंड हो जाएगा, आफ्टर डैट ही इक्विटी शेयर्स होल्डर को रिफंड होगा। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स at the time of winding up the preference shares get priority over the equity shares for the refund of the capital. ओके, बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने लगेगा, कंपनी क्लोज डाउन होने लगेगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ओवर द इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द रिफंड ऑफ द कैपिटल, की जो भी कैपिटल के रिफंड को हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, now the next one is redemption. Okay, so the equity shares are never redeemed or pay back during the lifetime of the company. Means redemption means कि all the values which is paid back. So equity shares holders, equity shares क्या होती है, इनकी जो values होती है shares की, ये permanent capital होते हैं। We have already studied कि these all are the permanent share capital। तो ये value इनकी कभी भी वैल्यू को पे बैक नहीं करते, ये हमेशा परमानेंट होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये वैल्यू क्या होगी, रिडीम्ड और पेड नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इट मे बी रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और इनकी वैल्यू क्या है, पे बैक हो जाएगी जैसे ही आपका जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम लिया गया होगा, 2 years 5 years, वो जैसे ही ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, रिडीम्ड हो जाएगी। और एट दी ऑप्शन ऑफ दी कंपनी, अगर कंपनी के ऑप्शन है कि कंपनी उन शेयर को परचेज सोल्ड आउट करना चाह रही है, अदर मेंबर्स को परचेज करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर डेट विद ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो वो क्या कंपनी क्या करेगी, वो सारे वैल्यू को और वो सारे शेयर्स को रिडीम कर देगी। ओके, सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी इक्विटी शेयर्स एंड दी प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, it is the also one of the source of the owners fund that for the long term finance, that is retained profit or earning, retained earning or the retained profit, it is also called the accumulated